Now, today we start the next chapter, the first chapter of your physical chemistry, that is solid state. And now we discuss the characteristics of solid. As we already know that there are three well distinct and well defined states of matter: solid, liquid and gas. Liquid and gas both are topics of class 11 which have been studied in class 11. Now the next topic is solid, and we have already know that we can differentiate the solid, liquid and gas on the basis of their presence of intermolecular force between molecules and their distance between them. As we already know that the intermolecular attraction between molecules of solid is more, so the distance between two molecules is less. That is, presence of strong intermolecular attraction decreases the intermolecular distance, and that gives a particular, a defined geometrical shape in three dimensions. So solids have definite surface area and volume. Due to their definite shape and structure, these solids are incompressible and rigid. We cannot be compressed easily any solid. Now these are characteristics of solid which is studied from class 9. Now the new topic sheet, we classify solids on the basis of their structural regularity. If the structures are regular, then these are called crystalline solid. If these are irregular, then they are called amorphous solid. There is difference between the physical characteristics of crystalline and amorphous solid. That is, what is physical character? Crystalline solid having sharp or definite melting point, that it only melt on a particular temperature, on a decided temperature. But in the case of amorphous solid, you can take the example of plastic. These amorphous solid, whenever we supply heat to them, it gradually softens, then melt. So these are not a definite melting point. Similar to that, the cleavage property of crystalline solid is sharp. We can make knife from any metal, but we cannot make knife from any amorphous solid. Similarly, these are called true solid, these are called pseudo solid. There is another property which is called anisotropy and isotropy. Anisotropy is characteristics of crystalline solid, whereas the isotropy is characteristics of only amorphous solid. So these are categorized. These are the difference between crystalline and amorphous solid. The crystalline solid having long range order force, but in the case of amorphous solid it having short range order force. यानी क्रिस्टल में एक रेगुलरिटी बहुत दूर तक मेंटेन रहती है, लेकिन amorphous solid में नहीं रहता है. और हमारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें पढ़ना है और इसके शेप को पढ़ना है. ये क्लास 12 की जो मेटल्स है जो हमें पढ़ना है. देखो, amorphous सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है इसमें रेगुलरिटी नहीं है. इसमें किसी एक स्ट्रक्चर में यहाँ 6 है, यहाँ 6 से ज़्यादा मोलिक्यूल एक रिंग बनाए हुए हैं, लेकिन ये रेगुलरिटी लॉन्ग रेंज में मेंटेन है. सो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनकी जो स्ट्रक्चर है फिक्स है, और स्ट्रक्चर फिक्स होने के कारण इनका शेप भी फिक्स है और ये काफ़ी हार्ड भी हैं. एमोर्फस कंपाउंड्स क्या होता है? ये पाउडर्ड होता है. यदि हमें कोई कंपाउंड एमोर्फस या क्रिस्टलाइन नहीं है, अगर टेम्परेचर प्रेशर प्रॉपर हम दें तो ये एमोर्फस सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टलाइन में. अब हम आते हैं व्हाट इज एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. एनिसोट्रॉपी, it is defined as the difference in measurement of physical characteristics of any crystalline solid. Anisotropy यानी anisotropy crystalline solid शो करता है, क्योंकि क्रिस्टल में सारे मॉलिक्यूल का शेप फिक्स है, पोजीशन फिक्स है. इसलिए जब हम उसके RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. लेकिन आइसोट्रोपी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी शेप फिक्स नहीं है, इसलिए कहीं से भी हम उसको मेजर करें वो कैरेक्टरिस्टिक सेम आती है. यानी पहला यूनिट हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के और एमोर्फस सॉलिड के यानी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है और उसके डिफरेंसेस की बात करता है. नेक्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आवर सब्जेक्ट मैटर इज नॉट एमोर्फस सॉलिड, आवर सब्जेक्ट मैटर्स आर व्हाट एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन नॉट ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। लेकिन अब आप एक चीज ध्यान में रखोगे, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंस करो, बताओ कौन सा एमोर्फस है कौन सा क्रिस्टलाइन है, तो आप कॉमन सेंस रखोगे सारे आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन हैं और सारे के सारे जितने भी मेटल हैं सब क्रिस्टलाइन हैं। तो इसमें बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स भी आता है और वहाँ कहता है कि जो ये सॉलिड है वो सॉलिड अगेन इसको क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। पहला कहता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कहता है आयनिक सॉलिड, तीसरा कहता है मेटालिक सॉलिड और चौथा कहता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अगर ये मोलिकुलर सॉलिड है तो इसके मोलिक्यूल क्या हो सकते हैं, या तो प्योर कोवैलेंट हो सकते हैं यानी नॉन पोलर हो सकते हैं, या फिर इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। यानी नॉन पोलर होगा तो इनके बीच का यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लंडन फोर्स होगा या डिस्पर्सन फोर्स होगा। लेकिन अगर पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी तो इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, या अगर स्ट्रॉन्ग है तो H बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो सकता है। लेकिन आयनिक सॉलिड में आयंस के बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। आप जानते हो कि जब दो डिफरेंट एटम्स highly electropositive or highly electronegative or and there is a transfer of electron between them and ions are formed and then these ions are attracted towards each other with electrostatic attraction जो कि इन सबसे stronger है। मेटालिक सॉलिड का तो एक अलग एग्जांपल ही है, अलग डेफिनेशन ही है। हम क्या कहते हैं, मेटल आयंस आर floating sea of electron, they are having more stronger intermolecular attraction. So these solids are conductor and shows high melting point, whereas in the case of ionic solids, these are conductor in their molten state, but insulator in their solid state. हमने आयनिक सॉलिड की ही पूरी कहानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई थी। The last one is covalent or solid और network solid. ये एक ऐसा सॉलिड है जो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, लेकिन ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है। इनमें इन सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ डायमंड इज हार्डर देन आयरन, इसकी मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कई गुना ज्यादा है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, जबकि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड है। डायमंड आपने देखा है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड भी एक एग्जांपल है। ये क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हुए भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ये जैपनीज स्ट्रक्चर को भी बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको एक्सेप्शन में रखा गया और दी जाती है नेटवर्क सॉलिड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी हार्डनेस ज़्यादा है और वो कोवैलेंट सॉलिड है, तो उसका जवाब है डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड। दूसरा ग्रेफाइट है जो सॉफ्ट है लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। डायमंड जो इंसुलेटर है लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर है। ये इसमें इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में ये 2D स्ट्रक्चर आता है, ये 3D स्ट्रक्चर आता है। इसमें चारों कार्बन, चार जितने भी कार्बन है, एक कार्बन चार अन्य कार्बन से बनकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो नो वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री है। बट इन द केस ऑफ ग्रेफाइट ओनली 3 कार्बन, 1 carbon is bonded with other 3 carbon, so 4th electron of central carbon is free to move over entire crystal, which provide conductivity to graphite. यानी हमने solid state का characteristics पढ़ा, उसके types पढ़े, वो 2 टाइप में था, crystalline and amorphous। हमें सिर्फ crystalline पढ़ना है।
और क्रिस्टलाइन को ही हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो 4 टाइप में किया, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेल के बारे में बताएंगे और यूनिट सेल की ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बताएंगे। ओके।